Good morning students, this is Anupama Lave for your subject company law. Today we are going to discuss our next chapter related with prospectus, and that is shelf prospectus. These are different types of prospectus which are issued by the company. Today we are going to learn the meaning and the provisions related with the shelf prospectus. So let us see first the definition of shelf prospectus. Shelf prospectus means a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus. Come on, what do you understand by this definition? I know nothing. So let us discuss it one by one. The shelf prospectus means, what is the meaning of shelf prospectus? It is a kind of a prospectus. It is also a type of a prospectus. But what is the difference between the prospectus and the shelf prospectus? The prospectus in respect of which, that means it is that type of prospectus in which securities or class of securities, every prospectus states which type of securities it is going to issue. That means what type of securities the company is going to issue through this prospectus. This prospectus includes the securities or class of securities issued for subscription. Obviously, why we issue the prospectus? For raising the capital. Isn't it so? So, issued for subscription in one or more issues over a certain period of time. This is important to note here, that one or more issues. One or more issues means this prospectus you can use for more than one time. In other prospectus, that means a plain prospectus, you have to issue every time whenever the company wants to raise the capital. Isn't it? यानी जब भी कंपनी कोई भी इशू करना चाहती है, देन एवरी टाइम क्या करना है, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना है. ओनली आफ्टर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस द कंपनी कैन रेज द कैपिटल. बट हियर इन केस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस देयर इज नो नीड टू इशू और टू फाइल विद द रजिस्ट्रार एवरी टाइम दिस शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार फॉर इशूइंग द सिक्योरिटीज. यानी क्या है, हर बार जब भी कंपनी अपना कोई इशू मार्केट में लाना चाहती है, सिक्योरिटीज अपने मार्केट में लाना चाहती है, देन देयर इज नो नीड फॉर अ कंपनी टू फाइल अगेन द प्रोस्पेक्टस. तो ये कब कंपनी को ये छूट मिलती है? व्हेन द कंपनी एट द बिगिनिंग ऑफ इशूइंग सच ए क्लास और टाइप ऑफ सिक्योरिटीज क्या कर रही है, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल कर रही है. तो अगर वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस करके उन्होंने रजिस्ट्रार के पास फाइल किया है, तो ही देयर इज नो नीड फॉर अ कंपनी टू फाइल अगेन एंड अगेन प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार. ठीक है, तो वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड. ओवर अ सर्टेन पीरियड यानी क्या है कि एक पीरियड दिया हुआ है, विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड यू कैन इशू योर सिक्योरिटीज विदाउट इशूइंग द न्यू प्रोस्पेक्टस. क्या होता है कि न्यू प्रोस्पेक्टस आपको हरदम इशू नहीं करना है. आपने क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द इशू ऑफ सच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज यू फाइल विद द रजिस्ट्रार द शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस. तो क्या देखा है हमने इसमें? Shelf prospectus is a type of prospectus which provide the facility to the company. क्या कर रही है? Facility provide कर रही है. To whom it provides a facility to the company. What type of facilities it is providing to the company? That there is no need to again issue prospectus every time whenever the company wants to issue the fresh securities in the market. यानी जब भी कंपनी अपने फ्रेश सिक्योरिटीज कौन सी होनी चाहिए, दैट इज मेंशन्ड इन दिस शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दैट इज सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज. While issuing this shelf prospectus, you already stated in that, you already mentioned in that which type of securities or class of securities you are going to issue through this shelf prospectus. So
अगर ऐसे ही क्लास ऑफ सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज यू आर अगेन इशूइंग इन द मार्केट, देन देयर इज नो नीड टू इशू द प्रॉस्पेक्टस। इज इट क्लियर? तो क्या देखा, शेल प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस है जिसमें जो मेंशन की हुई सिक्योरिटीज है या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज है, वैसे ही सिक्योरिटीज अगर फिर से कंपनी विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम, द स्पेसिफाइड टाइम इज जनरली 1 ईयर। MCA ने जो बताया हुआ है वो स्पेसिफाइड टाइम जनरली क्या रहता है, 1 ईयर। विद इन दैट 1 ईयर कंपनी जो भी ये सिक्योरिटीज जो मेंशन की है वो फर्दर इशू करना चाहती है, देन देयर इज नो नीड फॉर द कंपनी टू इशू अगेन एंड अगेन द प्रॉस्पेक्टस। सो क्या है ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस? शेल्फ का मतलब आप जैसे कि जानते हो, रैक क्या होती है, आपका घर में शेल्फ होता है ना, क्या रखते हो आप, व्हाट यू पुट इन दैट शेल्फ, क्या रखते हो, यस योर क्लॉथ्स, ठीक है, और क्या रखते हो, योर शूज, और क्या रखते हो, योर बुक्स, योर कॉपीज रखते हो क्या भैया, या बैग में एक रख दिया और हो गया आपका काम? कोई जरूरत नहीं मैडम आपको बुक्स और कॉपीज हमारे शेल्फ में रखने की, एक बैग में एक कॉपी रख दी होगी, आप कॉलेज तो है ही हमें बुक्स देने के लिए, या तो आप तो बैठे ही हो हमें बुक्स इशू करने के लिए, लेकिन नहीं, जनरल परचेस करो भैया, और हर सब्जेक्ट के लिए कॉपी परचेस करो, अच्छा रहेगा आपके लिए आगे जाने के लिए। चलो, तो क्या है ये, क्या करते हो आप, यू यूज दिस रैक। व्हाई यू यूज दिस रैक? बिकॉज यू आर यूजिंग दीज आर्टिकल्स अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट 1 ईयर तो यूज करते हो ना, करते ही होगे। तो ये क्या है, वैसे ही कंपनी, नहीं तो क्या है, एक प्रॉस्पेक्टस समझ लीजिए एक इशू कर दिया है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, चलो आपने चाय पी है आज, एक यूज एंड थ्रो वाला कप लाया हुआ है, उसमें आपने आज चाय पी है, धो के रख दोगे क्या फिर से रैक में, फिर से मुझे चाय पीनी होगी, फिर से मुझे, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अरे यार वो यूज एंड थ्रो है, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा ही प्रॉस्पेक्टस जिसका यूज हो चुका है, हाँ कंपनी अपने लिए एक रखेगी कि अगर आगे जाके अगर कोई इसके लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं तो अपने पास वो सिक्योरिटी के लिए चाहिए, लेकिन क्या पूरे के पूरे ऐसे रखेगी? और कोई डिमांड करने वाला है क्या वो प्रॉस्पेक्टस को उसकी डेट हो जाने के बाद? बिल्कुल भी नहीं, तो रैक में रखने की जरूरत नहीं है उसे। तो क्या है, चलो यूज एंड थ्रू वाला एक कप हो गया, और एक चाय बोन चाइना का कप है, बोन चाइना का कप फेंक दोगे क्या? चाय पी ली, चलो फेंक दिया, इतनी देर से ज्यादा जा रही है क्या, कमाओ खुद फिर समझेगा, नहीं, तो क्या करोगे आप, पैसे बचाने हैं, कंपनी को भी क्या है, कंपनी नीड्स मनी एंड इट यूज द मनी प्रॉपरली, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बराबर है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में ही हमारा जा रहा है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। हर दम हमें प्रिंटिंग की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू print again and again the prospectus, there is no need to file with the registrar that prospectus, that is the shelf prospectus। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम सेविंग भी है, और कॉस्ट एफिशिएंट भी है आपका शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। नाउ let us see what are the provisions related with shelf prospectus। what kind of company or what class of company issues this shelf prospectus? Any class। कौन सी क्लास की कंपनियां? any class, कोई भी क्लास हो, that companies file the shelf prospectus। with whom they are filing the shelf prospectus? obviously with the registrar। किसके पास आपको ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना है? मेरे और आपके पास नहीं, ओनली विद द रजिस्ट्रार। देन वैलिडिटी पीरियड, validity period is mentioned by the MCA, that is under the Companies Act। what will be the validity period of this shelf prospectus? मैंने आपको अभी कहा generally 1 year is the validity for that shelf prospectus। generally I am using the word generally 1 year। why generally 1 year? because you need 1 year to grow or to expand your business। ठीक है, लेकिन ये 1 ईयर में ऐसा तो जरूरी नहीं है, ग्रेजुअली ग्रोथ होती है। तो पिछले महीने हमारा लॉस हुआ है तो इस महीने भी लॉस ही होगा, या पिछले महीने जो हमने पॉलिसीज अडॉप्ट की थी वही पॉलिसीज हमने अभी की है, या वैसी सिचुएशन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो देयर आर चांसेस ऑफ मेजर चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन, with respect of your composition of board of directors or any material change। ये हो सकता है,
बराबर है। इसलिए जनरली ये जो आपकी प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी की जो दी है दैट इज 1 ईयर। जनरली आपको वारंटी गारंटी कितने साल की मिलती है? 1 ईयर। वैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कितने की दी है? 1 ईयर। ओके, नो नीड टू फाइल अगेन। क्या है? ड्यूरिंग द नेक्स्ट इश्यू क्या है आपको? देयर इज नो नीड टू फाइल अगेन विद द रजिस्ट्रार विद इन दिस वैलिडिटी पीरियड। बराबर है, आपको हर दम ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। देन you don't have to file this prospectus, that means the shell prospectus with the registrar, but something you had to file or you had to intimate to the registrar that the company is going to raise the capital through the public or through the members। बराबर है, इसके लिए इंटीमेशन तो जाना जरूरी है रजिस्ट्रार के पास। How you will intimate that? चलो देखते हैं आगे के इसमें कि how you will intimate filing of an information memorandum। Instead of filing the shelf prospectus, what you are going to file with the registrar? Information memorandum. What is information memorandum? Information memorandum is the memorandum which provides the information to the registrar relating to the material changes. Material changes कौन से? That happens within the period, that means starting from जैसे कि आपने previous जो issue किया है और अभी जो आप fresh issue करना चाह रहे हो, उस बीच की जो गैप है उसमें जो मटेरियल चेंजेस हुए हैं, that duration between that two issues that you have to inform to the registrar, and that information is known as information memorandum. Is it clear? कौन सी इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन वो जो प्रीवियस इश्यू जो आपने दिया था सिक्योरिटीज का और अभी जो आप दे रहे हो, इस बीच में अगर कोई मटेरियल चेंजेस हुए हैं, मटेरियल चेंजेस यानी क्या है? जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल चेंजेस है या कंपोजिशन में कोई चेंजेस है या आपने आपका एक्सपांड किया हुआ है, एनीथिंग विच द रजिस्ट्रार which the company had recognized as material changes, you have to provide that changes or that information to the registrar, and that information is filed with the registrar in the name of memorandum information. Then next one is time of filing memorandum information. There is a time within that you have to file this memorandum information with the registrar. What is that time? Within 1 month. Within 1 month means what? That means the date of giving the issues, that means opening the issue to the general public or to the members from that date before 1 month. यानी आपने अगर डेट दी हुई है, समझ लीजिए 1 Jan 2021 is the date of issue of next securities, ठीक है? तो आपका ये क्या हो जाना चाहिए? Before at least 1 month, यानी आपने कब देना चाहिए? 1 December 2020। ये this is the date for filing the memorandum information with the registrar. Then next one is applications for securities received before making such changes. Generally what happens, क्या होता है जनरली कि कंपनी क्या करती है कि ये जो सिक्योरिटीज है वो मार्केट में तो आई हुई है, लेकिन ये जो मटेरियल चेंजेस है दैट मीन्स इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है ये आपने बाद में फाइल किया है विद द रजिस्ट्रार। बराबर है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इशूड एट द बिगिनिंग। On that basis, the investors is investing money with your company. बराबर है, that means you got the applications for securities from the investors before making such changes. Making such changes means before filing the information memorandum with the registrar. Then the investor has a choice to withdraw their applications. मटेरियल चेंजेस को पढ़ने के बाद हो सकता है कि मैं मेरा डिसीजन बदल दूँ यानी मैंने तो एप्लीकेशन पहले की हुई है, लेकिन अब मैंने जब ये मटेरियल चेंजेस को रीड किया है देन आई चेंज्ड माय माइंड एंड आई वांट टू विथड्रॉ द एप्लीकेशंस, देन दैट विथड्रॉल इज एक्सेप्टेबल एट कंपनीज एक्ट। बराबर है, तो कंपनीज एक्ट उसे एक्सेप्ट करती है एंड
there arises the responsibility of a company to refund all monies which it has received on these applications. बराबर है? तो ये पूरा का पूरा money that the company received on such a type of application, it has to refund it within a period of 15 days. कितने दिनों में आपको ये रिफंड करना है? Within a period of 15 days from withdrawal of the applications from the investors. समझ में आया है? तो ये आपने क्या किया है? इसे withdraw किया हुआ है. Then seventh is information memorandum and shell prospectus to be deemed prospectus. These information memorandum and shell prospectus are deemed to be a prospectus. Deemed prospectus यानी क्या होता है? ये समझे जाते हैं. These are not actually prospectus, but it contains all the provisions which are necessary to treat an information as a prospectus. But as it is not a prospectus, it is considered as a deemed prospectus. Is it clear? Okay. In our next lecture, we are going to discuss the red herring prospectus. That is the next type of prospectus. Thank you.